Good morning, dear students. This is the third part of poverty as a challenge. In a previous lecture, we had discussed about the poverty line, how poverty line can be measured, which organization is responsible for measuring the poverty line, and we had discussed about the poverty trend in India. And while discussing the poverty trend in India, we had seen that in rural areas, both the poverty ratio as well as number of poor is more as compared to the urban areas. अब हम डिस्कस करेंगे कि जो वल्नरेबल ग्रुप है society में all the sections of the society are not equally vulnerable to poverty. Some sections are there which are more vulnerable to poverty. We will discuss which section of the society is more vulnerable to poverty. For that, let us read this graph. Here, this is the national average of Indian poverty ratio. It is 21.9%. You can see the bar of scheduled caste in rural areas. It is 31.5 and scheduled tribe in rural India 45.3. मीन्स जो नेशनल एवरेज है, कंट्री का एवरेज है, दैट इज 21.9, उससे काफ़ी ज़्यादा है शेड्यूल कास्ट का एवरेज इन रूरल एरियाज. मीन्स रूरल एरियाज में जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं उनमें से 31.5% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन बिलोंग करते हैं. एंड अगर आप शेड्यूल ट्राइब लोगे तो शेड्यूल ट्राइब रूरल एरियाज में 45.3% शेड्यूल ट्राइब के लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे बिलोंग करते हैं. मीन्स अगर आप ये ग्राफ देख रहे हैं तो ये दो सेक्शन, दिस टू सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर मोर वल्नरेबल टू पॉवर्टी. ज़्यादा वल्नरेबल है, दे आर एट रिस्क. एंड दिस वी हैड डिस्कस्ड in the first lecture, the broader definition of poverty given by the social scientist. And according to social scientists, the two poverty indicators are social exclusion. Social exclusion means ये जो शेड्यूल का बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब, they are not equally treated in the society. They don't get equal opportunities. They don't get equal privilege, benefits, job opportunities नहीं है, educational opportunities नहीं है. These are the reason behind their poverty, why they are poor. Due to the social exclusion, these two section of the society, scheduled tribe and scheduled caste, they are vulnerable to poverty. So, first group is vulnerable to poverty. This is social group. The first group is social vulnerable group और social vulnerable group के अंडर में scheduled tribe and scheduled caste आते हैं. And here the agriculture laborer. There also agriculture is a major activity in the village area, rural areas. The people, those who don't have land, they used to work in the land of other farmers, other people. Agriculture is a highly seasonal activity. इसलिए जो भी लेबरर्स एग्रीकल्चर फील्ड में फार्म में काम करते हैं, देयर वर्क इज सीजनल. सीजनल मीन्स थ्रू आउट द ईयर दे डोंट हैव वर्क, दे डोंट हैव जॉब. दैट इज वाई दे आर ऑल्सो वल्नरेबल. इसलिए ये भी एग्रीकल्चर लेबरर्स भी वल्नरेबल है क्योंकि उनके पास एक परमानेंट, एक रेगुलर जॉब नहीं है. साल में नियर अबाउट 7 months, 8 months उनके पास काम होते हैं. रेस्ट ऑफ द ईयर 5 months, 4 months दे रिमेन अनएम्प्लॉयड. दैट इज़ वाई इनमें भी परसेंटेज बहुत हाई है, दैट इज़ 39.8%. इन केस ऑफ कैजुअल लेबरर्स ये अर्बन एरियाज में मोस्टली मिलते हैं. जो कंस्ट्रक्शनल साइट में जो लोग काम करते हैं, दे आर कैजुअल लेबरर्स. अब कैजुअल लेबरर्स के साथ भी सेम प्रॉब्लम है. दे डोंट हैव रेगुलर जॉब नहीं है ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन, ड्यू टू नॉट गेटिंग प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़.
दे कांट डू देयर वर्क एफिशिएंटली। जब वो काम नहीं करते हैं तब उनको वेजेस नहीं मिलते हैं। दैट इज़ वाई दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज़ वेरी वल्नरेबल टू पॉवर्टी। तो अगर इकोनॉमिकली वल्नरेबल ग्रुप देखा जाए, अंडर इकोनॉमिकली वल्नरेबल ग्रुप 2 sections are there. One is agricultural laborers, another is the casual laborers. So who are vulnerable to which section of the society is vulnerable to poverty? And for that we can divide the society into 2: social vulnerable group and economically vulnerable group. social vulnerable group के अंडर में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब आ जाते हैं, एंड इकोनॉमिकली vulnerable group के अंडर में रूरल लैंडलेस लेबरर्स आ जाते हैं एंड अर्बन कैजुअल लेबरर्स आते हैं। अब एक थर्ड पॉइंट आई हैव रिटन, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर? पुअर में से भी पुअर, ये हो सकता है। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। से सपोज इन अ पुअर फैमिली देयर आर 6 मेंबर्स। 6 में से 2 एल्डरली मेंबर हैं, 2 एडल्ट मेंबर हैं और 2 चिल्ड्रन हैं। One is girl child, another is a boy child. अब इन 6 में all are poor, but इन 6 मेंबर में से who is most benefited और who is most privileged? सबसे ज़्यादा privilege किनको मिलता है? Do you know? The male earning member of the family. जितना भी रिसोर्स होता है फैमिली का, उसका एक मेजर शेयर, यू कैन से लायंस शेयर जाता है मेल अर्निंग मेंबर के पास। एंड सेकेंड प्रिविलेज्ड कौन है? कैन यू इमेजिन? कैन यू? यस, द मेल चाइल्ड या मेल इन्फेंट, सेकेंड प्रिविलेज्ड मेंबर ऑफ द फैमिली। एंड हु आर द मोस्ट इग्नोर्ड मेंबर ऑफ द फैमिली? फैमिली में सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड कौन होते हैं? एल्डरली, फीमेल इन्फेंट्स एंड वीमेन। ये सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड होते हैं। 50% मेल अर्निंग मेंबर शेयर जाते हैं, उसके बाद मान लो कि 25% जाता है मेल इन्फेंट या बॉय चाइल्ड के पास, बाकी 25% डिवाइड होता है गर्ल चाइल्ड, वेमेन एंड एल्डरली मेंबर्स के बीच। दैट इज़ वाई फीमेल इन्फेंट्स, women and elderly members, they are known as poorest of the poor. Come to the next slide. Interstate disparities. What is the meaning of interstate disparities? Interstate disparities means differences. Interstates means among the states, between the states. Come to the map. This is a map of India. We are having 28 states and 9 union territories. Do you think कि जो 28 states है, इसमें poverty is equally distributed? Means all the states are equally poor? No. All the states are not equally poor. The poverty, the national average is 21.9%. इनमें से कुछ स्टेट्स है जिसका एवरेज नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। मीन्स पॉवर्टी रेशियो इज़ हायर देन द नेशनल एवरेज। मीन्स उनका कंडीशन खराब है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी ज़्यादा है मीन्स कंडीशन खराब है। कुछ स्टेट्स में मॉडरेट है और कुछ स्टेट में पॉवर्टी रेशियो बहुत ज़्यादा कम है। एक्चुअली इंडिया में 5 स्टेट्स हैं जिनका पॉवर्टी रेशियो नेशनल पॉवर्टी रेशियो से ऊपर है, हाई है। इनमें से उत्तर प्रदेश, दिस इज द मैप ऑफ दिस इज उत्तर प्रदेश, शेयर इज उत्तर प्रदेश, देन मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार एंड असम। ये जो 5 स्टेट्स है, दिस इज असम, बिहार, यू कैन सी हियर इज बिहार, here is Orissa, this is Orissa, this is Madhya Pradesh and this is Uttar Pradesh. ये 5 स्टेट में जो कंडीशन है पॉवर्टी का, ये नेशनल एवरेज से काफ़ी ऊपर है। इसमें से आउट ऑफ दिस 5 स्टेट्स बिहार एंड उड़ीसा का हालत बहुत ज़्यादा खराब है। मीन्स दे आर द
पुअरेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री। बहुत ज़्यादा खराब है बिहार एंड उड़ीसा का। लेट अस सी व्हाट इज रिटन हियर। The proportion of poor people is not the same in every state. Good. States like Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, Bihar and Orissa had all India poverty level. Means उससे ज़्यादा है। Bihar and Orissa continue to be the two poorest states with poverty ratio of 33.7% and 37.6%. Along with rural poverty, बिहार एंड उड़ीसा में एक प्रॉब्लम क्या है? बिहार उड़ीसा में प्रॉब्लम है कि रूरल पॉवर्टी के साथ साथ अर्बन पॉवर्टी भी एग्जिस्ट करते हैं। बाकी कुछ स्टेट में रूरल एरियाज में पॉवर्टी है लेकिन अर्बन एरियाज में पॉवर्टी नहीं है। लेकिन बिहार एंड उड़ीसा में इन रूरल एरिया एज वेल एज इन अर्बन एरिया पॉवर्टी एग्जिस्ट करते हैं। कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, देन गुजरात, देन केरला, देन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल। कौन कौन सा स्टेट? जम्मू कश्मीर, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल एंड पंजाब भी है। पंजाब भी है। इन स्टेट में पहले पॉवर्टी होती थी, poverty level was high. These state governments, they had taken various measures to reduce the poverty level and it is very successful. Let us see how these state governments, what measures they had taken and how they reduce the poverty level. Okay, so reducing poverty level by adopting different methods by the state government. देखते हैं पंजाब एंड हरियाणा में क्या हुआ था। पंजाब एंड हरियाणा, दिस इज पंजाब एंड दिस इज हरियाणा। पंजाब हरियाणा में ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ? एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई थी एंड ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी द पॉवर्टी लेवल रेशियो हैज़ रिड्यूस्ड अ लॉट। बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है पंजाब हरियाणा में ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। अभी है ही नहीं, पॉवर्टी है ही नहीं। उसके बाद केरला गवर्नमेंट ने क्या मेजर लिया था? केरला गवर्नमेंट में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया था। वी नो ना 100% लिटरेसी लेवल इन केरला इज 100%। मीन्स बाय investing in human resource and by developing human capital, the Kerala government has reduced the poverty level. अभी पॉवर्टी नहीं है। तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में कौन सा मेजर लिया था? तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब है जो राशन शॉप होते हैं जिनके पास कार्ड होता है, ये भी एक है चैप्टर है, आगे आप पढ़ेंगे। जो BPL कार्ड होता है, APL। BPL मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन। जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में बिलोंग करते हैं उनके पास एक कोऑपरेटिव्स के लिए, राशन शॉप के लिए, फेयर प्राइस शॉप के लिए कार्ड होता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कार्ड उनको महीने में वीट, राइस बहुत कम रेट में मिलता है। मान लो कि 2 रुपीज़ किलो राइस, देन 1 रुपी किलो वीट ऐसे मिल जाते हैं टू सपोर्ट द पुअर पीपल। जैसे कि तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में ऑल द स्टेट्स दे आर हैविंग PDS सिस्टम। दिस इज द स्कीम पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है सभी में, लेकिन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश ने सबसे ज़्यादा बेनिफिट PDS का उठाया है, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश ने। एंड बाय यूजिंग दिस PDS सिस्टम प्रॉपरली, एफिशिएंटली, द पॉवर्टी लेवल हैज़ डिक्रीज्ड अ लॉट इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। अब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने क्या किया? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स किया था। लैंड रिफॉर्म्स मीन्स इन्वेस्ट इन द लैंड। लैंड में इन्वेस्ट किया था, लैंड सीलिंग किया था, लैंड में रिफॉर्म किया था एंड बाय डूइंग दैट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस्ड द पॉवर्टी अ लॉट
एंड जम्मू कश्मीर में क्या किया था? जम्मू कश्मीर में जिसमें पोटेंशियल है स्टेट का, उस पोटेंशियल को यूज़ किया है। जम्मू कश्मीर का पोटेंशियल क्या है? टूरिज़्म। तो टूरिज़्म को इतना ज़्यादा डेवलप किया है, इतना डेवलप किया है, और इसमें फ्रूट्स भी हैं, है ना, फ्रूट्स नट्स भी मिलते हैं, एप्पल, जितने भी एप्पल, एप्रिकॉट, वॉलनट, ये भी मिलते हैं। तो जहाँ पे स्टेट का पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को एफिशिएंटली एंड फुल्ली यूटिलाइज करके गवर्नमेंट ने, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने पॉवर्टी लेवल को रिड्यूस किया है। ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज रिटन हियर। एक पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट हैड high agricultural growth rate due to the effect of the Green Revolution. Kerala has developed its human resource by investing more in education. West Bengal government has reduced poverty by implementing land reforms. Then public distribution of food grains at subsidized price in Andhra Pradesh and Tamil Nadu has helped in poverty reduction. And Jammu and Kashmir have generated wide-ranging economic activities all across the state and converted potential in various sectors into employment opportunity. So this is the scenario of the various state. कुछ स्टेट में अभी भी पॉवर्टी है. बिहार एंड उड़ीसा, they are struggling with poverty. Some states are there, they have reduced their poverty level, then they are enjoying the benefits of various schemes. Okay, next है global poverty scenario. Global poverty scenario means now we will discuss poverty from the perspective of world. वर्ल्ड में पॉवर्टी का कंडीशन क्या है, पूरी दुनिया में पॉवर्टी का कंडीशन क्या है. अगर आप देखोगे जो इसमें कम टू द मैप, जो साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया में क्या क्या आते हैं? साउथ ईस्ट एशिया में म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, ये सारे जो कंट्रीज़ है यहाँ पे, छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ है, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, देन म्यांमार भी आ जाते हैं. दिस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ एंड चाइना, ये दोनों ने पॉवर्टी लेवल को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया है. साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड चाइना, देयर इज अ डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेशियो ड्यू टू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स में डेवलपमेंट करके, इन्वेस्ट करके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड चाइना, इट हैज़ रिड्यूस द पॉवर्टी लेवल. अब जो लतीन अमेरिका है एंड कैरेबियन, इनमें 1981 तक पॉवर्टी रेशियो में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं. लैटिन अमेरिकन कैरेबियन कंट्रीज कौन कौन से हैं? जो लैटिन अमेरिकन है, ये मोस्टली जो साउदर्न अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, इसमें जो कंट्रीज है, दीज कंट्रीज आर नोन एज लैटिन अमेरिका. साउदर्न अमेरिका के, साउथ अमेरिका के जो कंट्रीज है, दिस आर लैटिन अमेरिका. कैरेबियन कंट्रीज के, या कैरेबियन सी हैं, इसमें जो छोटे छोटे आइलैंड है, यू कैन से क्यूबा, देन निकरागुआ, दिस, और भी छोटे 2-4 छोटे छोटे कंट्रीज है, ये कैरेबियन कंट्रीज हैं. और लैटिन अमेरिका मोस्टली यहाँ से, मेक्सिको भी लैटिन अमेरिका में आ जाते हैं. ठीक है, साउथ अमेरिका के कंट्रीज लैटिन है, इनमें पॉवर्टी का बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है सिंस 1981 से. अब कुछ कंट्रीज ऐसे भी है जो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज है, इनमें पॉवर्टी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है. पॉवर्टी रेशियो इंक्रीज हुआ है कहाँ पे? सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज में. वो कौन सी कंट्रीज हैं? जो अफ्रीका के ऊपर, ये इजिप्ट, देन लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ये ऊपर जो 4 कंट्रीज है, ये छोड़ के नीचे जितना भी अफ्रीका के कंट्रीज है, दीज आर सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज है. इजिप्ट, लीबिया, देन
देन अल्जीरिया एंड मोरक्को यहाँ पे है। ये 4 छोड़ के नीचे वाले जितने भी कंट्रीज है अफ्रीका के, वो है सब सहारन अफ्रीका। तो इन कंट्री में पॉवर्टी लेवल इंक्रीज हुआ है। क्यों? ड्यू टू वेरियस रीजन। उसमें से कुछ नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल रीजन भी है, लाइक ड्राउट्स भी है, अदर रीजन भी है। और भी एक कंट्री है जैसे कि रशिया। रशिया में, वेयर इज रशिया? रशिया इज हियर। रशिया के ये जो पार्ट है ये यूरोप कॉन्टिनेंट में आते हैं, जो यहाँ पे सी के ऊपर, और कैस्पियन सी है यहाँ पे। कैस्पियन सी के ऊपर वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन यूरोप में आता है, और ये रशिया के पोर्शन एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। ये इतना बड़ा है। तो रशिया में, ये कम्युनिस्ट कंट्री है रशिया एक, तो रशिया में ऑफिशियली पहले कोई भी पॉवर्टी नहीं थी, बट अभी ये पॉवर्टी है। सो दिस इज द ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। लेट अस हैव अ quick look of this global poverty ratio. In Southeast Asia and China, there is a decline in poverty due to rapid economic growth and massive investment in human resource development. तो सबसे अच्छा कंडीशन साउथ ईस्ट एशिया और चाइना का। लैटिन अमेरिका, कैरेबियन में पॉवर्टी रेशियो हैज़ नॉट चेंज्ड, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, ना तो इंक्रीज हुआ है ना तो डिक्रीज हुई है। लेकिन सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज में पॉवर्टी रेशियो इंक्रीज हुआ है ड्यू टू वेरियस रीजन, नेचुरल कैलामिटी, डिजास्टर के लिए भी हुआ है। और एक कंट्री ऐसा है जो रशिया, जो सोशलिस्ट कंट्री, पहले तो सोशलिस्ट कंट्री है, तो उसमें पहले पॉवर्टी नहीं थी ऑफिशियली, पर ऑफिशियली इट वाज नॉन एग्जिस्टेंट अर्लियर। पहले पॉवर्टी नहीं थी। अब हिस्ट्री में आप ये चैप्टर पढ़ोगे, द रशियन रेवोल्यूशन आपका सेकेंड चैप्टर है, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सोशलिस्ट कंट्री, कम्युनिस्ट कंट्री का मतलब क्या है। तो रशिया में पहले नॉन एग्जिस्टेंट था ऑफिशियली, बट पॉवर्टी हैज़ ऑल्सो रिसर्फेस्ड in some parts of the Russia. I hope this portion is clear to you. Thank you and have a good day.